بھارتی ہٹ دھرمی کے باوجود امریکہ مسئلہ کشمیر کے حل کا خواہش مند۔ صدر ٹرمپ کی معاملے پر پھر ثالثی کی پیشکش۔ کشمیر کو ہندو خطہ بنانے کی سازش کے متعلق پاکستانی موقف کی بھی تائید۔ ٹرمپ کہتے ہیں ہندو انتہا پسند نظریہ بھارت میں مسلم اکثریتی علاقے کو دبانا چاہتا ہے۔ وہ کشمیر کے معاملے کے حل کی کوشش کر رہے ہیں۔ G7 اجلاس میں مودی سے بات کر کے ثالثی کی کوشش کریں گے۔ نریندر مودی دنیا میں کہیں بھی جائے ہر جگہ پیچھا کریں گے۔ لندن میں خالصہ تحریک اور کشمیری کمیونٹی رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ پی ٹی آئی رہنما بھی شریک۔ پیرس میں مودی کی آمد پر مظاہرے میں شرکت کا اعلان۔ یورپ بھر کے سکھوں اور کشمیریوں کی بھرپور شرکت کی دعوت۔ برمنگھم میں بھارتی قونصلیٹ کے باہر کشمیری خواتین، بچوں اور نوجوانوں کا احتجاج۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی شدید مذمت۔ مودی سرکار کشمیریوں سے جینے کا حق بھی چھین رہی ہے۔ کشمیری رہنماؤں کا خطاب، فضا کشمیر کی آزادی کے نعروں سے گونجتی رہی۔ مشرقی لندن کے علاقے والتھمسٹو میں کنزرویٹو پارٹی کی عید ملن پارٹی۔ اوورسیز پاکستانیوں کے علاوہ مقامی شہری بھی شریک۔ فلاحی منصوبوں کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کی گئی۔ گلوکارہ روشن آرا بیگم نے فن کا جادو جگا کر محفل کو چار چاند لگا دیے۔ ملائیشیا کے علماء کرام بھی کشمیریوں کے حق میں بول پڑے۔ 6,500 مساجد کے ائمہ کرام کشمیر کی آزادی کے لیے یک زبان۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم اور بربریت کی سخت مذمت۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی علماء تحریک کی حمایت کر دی۔ امریکی اراکین کانگریس نے کشمیر کے ایشو پر آواز اٹھانا شروع کر دی۔ نیو یارک سے منتخب امریکی کانگریس ویمن ایوٹ کلارک کا بھارتی وزیر اعظم کی کڑی تنقید۔ کانگریس میں کشمیر کے حوالے سے آواز اٹھانے کا اعلان۔ وفاقی وزیر برائے اینٹی نارکوٹکس شہریار آفریدی کی جرمنی آمد۔ ہینوور میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جاوید اقبال نے عشائیہ دیا۔ شہریار آفریدی کی جانب سے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی۔ اسپین کے شہر بارسلونا کی فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ جشن آزادی کے حوالے سے رنگا رنگ تقریب۔ اوورسیز پاکستانی ملی جوش و جذبے کے ساتھ شریک ہوئے۔ بچوں نے ملی نغمے، ٹیبلوز اور تقاریر پیش کر کے خوب داد وصول۔ ملائیشیا میں 9 تعینات پاکستانی ہائی کمشنر رامنا بلوچ نے کوالالمپور میں اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ پاک ملائیشیا تعلقات میں مزید بہتری لانے کا عزم۔ آمنہ بلوچ کی 92 نیوز سے خصوصی گفتگو۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ، فوجیوں کی للکار اور ملٹری بینڈ کی جھنکار۔ سننی ہے تو استنبول کے پینوراما میوزیم کا رخ کیجیے۔ دنیا بھر سے آئے سیاح سلطنت عثمانیہ کی فتوحات کی تاریخ دیکھ کر مرعوب۔ قدیم جنگی ہتھیار خصوصی توجہ کا مرکز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں ثنا عثمان۔ ناظرین، پاکستان نے سفارتی کوششیں مزید تیز کر دی ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ڈنمارک، ناروے، سویڈن اور آئیوری کوسٹ کے وزرائے خارجہ کو ٹیلی فون کیا اور مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے اور بھارتی مظالم سے آگاہ کیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔
کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف دنیا نے خاموشی توڑ دی۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، لیکن بھارتی حکومت سے کشمیر کے بے قصور لوگوں سے منصفانہ سلوک کی امید کرتے ہیں۔ برطانیہ نے جان بوجھ کر خطے میں یہ زخم چھوڑا تھا تاکہ کشمیر کے تنازع کو طول دیا جا سکے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کو فون کر کے مسئلہ کشمیر کے پرامن حل پر زور دیا۔ بورس جانسن نے واضح کیا کہ مسئلہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں، اسے پاکستان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ڈنمارک، ناروے، سویڈن اور آئیوری کوسٹ کے وزرائے خارجہ کو ٹیلی فون کیا اور مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے اور بھارتی مظالم سے آگاہ کیا۔ سویڈش وزیر خارجہ نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ تحریک انصاف نے مودی کے دورہ امریکہ پر شدید احتجاج کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے پارٹی کی عالمی تنظیم کو تیاریوں کی ہدایت کر دی۔ عمران خان نے کہا کہ سفاق مودی حکومت تمام قوانین رونتے ہوئے کشمیریوں پر ظلم کی تیاریوں میں ہے۔ بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا۔ آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ۔ لندن میں سکھ رہنماؤں نے پریس کانفرنس میں احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ سکھ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ نریندر مودی کا دنیا بھر میں پیچھا کیا جائے گا۔ لندن سے سکھ اور کشمیری رہنما 23 اگست کو فرانس کے شہر پیرس میں جمع ہونے کے لیے روانہ ہوں گے۔ اسی پر دیکھیے وسیم کاظمی کی یہ رپورٹ۔ لندن کے علاقے ساؤتھ ہال کے مقامی ہوٹل میں خالصہ تحریک کے سکھ رہنماؤں اور کشمیری برادری کی مقامی معروف شخصیات کے زیر اہتمام ایک ہنگامی پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں نریندر مودی کے دورہ فرانس پر پیرس میں شدید احتجاجی مظاہرہ کرنے کا اعلان کیا گیا۔ پریس کانفرنس میں خالصہ تحریک کے رہنما پرمجیت پما، منجیت سنگھ، دیگر سکھ اور کشمیری برادری سے رہنماؤں نے شرکت کی۔ پریس کانفرنس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سکھ رہنما پرمجیت سنگھ پما نے کہا کہ وہ لندن سے بسوں کے ذریعے 23 اگست کو پیرس پہنچیں گے اور وہاں یونیسیف کے دفتر کے سامنے بھارتی ظلم و بربریت کے خلاف سخت مظاہرہ کیا جائے گا۔ اس موقع پر برطانیہ کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیت ملک رومی نے کہا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں ڈھائے جانے والے ظلم پر اب خاموش رہنا گناہ عظیم ہوگا۔ سکھ رہنماؤں نے پریس کانفرنس میں تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے آئندہ حکمت عملی کو پیرس واپسی سے منسلک کر دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارتی دہشت گرد نریندر مودی کو بے نقاب کرنے کے مزید اقدامات سے میڈیا کو آگاہ رکھا جائے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کی وجہ سے کشمیری بندوقوں کے سائے تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ان معصوم کشمیریوں کے حق میں اور بھارتی حکومت کے خلاف برمنگھم انڈین کونسل کے باہر برٹش کشمیری بچوں، خواتین اور نوجوانوں نے احتجاج کیا۔ احتجاج میں دیگر کمیونٹیز کے افراد بھی شامل ہوئے۔ برمنگھم سے عابد قاسمی کی یہ رپورٹ۔ برٹش کشمیریوں نے انڈین کونسلیٹ برمنگھم کے باہر بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں نوجوانوں، خواتین اور بچوں نے شرکت کی۔ مظاہرین نے بھارت مخالف اور کشمیر کی آزادی کے لیے نعرے بازی کی۔ اس موقع پر صدر تحریک کشمیر برطانیہ راجہ فہیم کیانی، نجیب افسر اور دیگر خواتین اور بچوں نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی گاسبانہ 8 لاکھ فوج نریندر مودی کی سرپرستی میں نہتے کشمیریوں کا قتل کر رہی ہے اور گزشتہ 3 ہفتوں سے پورے کشمیر میں تالہ بندی کی صورتحال قائم کی ہوئی ہے۔ اب وہاں کشمیر میں ظلم نہیں بند کرے گا، ہمارا پروسیس اس وقت تک جاری رہے گا۔ نریندر مودی کو یہی پیغام ہے، ہمارا اقوام متحدہ کو یہ پیغام ہے، انسانی تنظیم کو یہ پیغام ہے، اس کو بحال کیا جائے۔ جتنی بھی امن کی تنظیمیں ہیں ان سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مودی کو روکا جائے۔ The curfew they have imposed on Kashmiris, we are demanding the United Nations to lift that curb. کشمیری بہن بھائیوں کو یہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں انشاءاللہ، اور ہم کھڑے ہوئے ہیں آپ لوگوں کی سپورٹ کے لیے۔ We are here because Kashmir needs help. The children can't go to school and they don't have any sport. Indian forces and government are being very unjust against Kashmiris. It's their choice what they want to do with their land. No one else should force their beliefs against them. جب تک نریندر مودی وہاں پر کرفیو لفٹ اپ نہیں کرتا، لوگوں کو فوڈ اور اپنا میڈیسنز کی ایکسیس نہیں دیتا، اور جو کمیونیکیشن جو بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے وہ ختم نہیں کرتا، ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ ہمارے کشمیری بہن بھائی وہاں درد سے، تکلیفوں سے گزر رہے ہیں۔ ہم ان کے لیے جنگ تو نہیں کر سکتے، لیکن یہی ہمارا جہاد ہے کہ ہم ان کے لیے یہاں پہ اس ملک میں کھڑے آواز بلند کر رہے ہیں۔ Modi is a modern day Hitler, so he needs to be stopped. The atrocities he's causing
It's been a lockdown over 2 weeks now. We don't know how those people are surviving, what they've got to eat or what they've got to drink. So please, all the world, this is a message to all the world, get together and stop Modi. I'm here today to protest for Kashmir. People are getting killed for no reason at all and they need their freedom back. Stop killing Kashmir. We want freedom. हम भारतीय रियासती दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। कश्मीर आज 15 रोज तक मुकम्मल लॉकडाउन है। हम अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं वो कश्मीर के अंदर फौरी इंटरवीन करे। दुनिया के ह्यूमन राइट्स की जितनी भी तंजीमें हम उनसे अपील करते हैं कि कश्मीर काज पर वो अपनी आवाज़ उठाएं और ह्यूमन राइट्स वाले इस इशू को हाईलाइट करें। इनका मजीद कहना था कि मोदी को ताकत के नशे ने पागल खूनख्वार भेड़िया बना दिया है जो ये समझता है कि जालिम फौजी कुव्वत से कश्मीरियों की आजादी की जदोजहद को खत्म कर देगा। भारत के कश्मीरियों के खिलाफ इस जालमाना रवैये पर आलमी ताकतों की खामोशी मुजरमाना है। जब तक भारत कश्मीर में जुल्म बंद नहीं करता हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मशरकी लंदन के इलाके वॉल्थमस्टो में वॉल्थमस्टो कंजर्वेटिव पार्टी ने पुरवकार ईद मिलन और फंड रेजिंग तकरीब का एहतमाम किया जिसमें कंजर्वेटिव पार्टी के अहदेदारों के साथ साथ मकामी लोगों ने एक कसीर तादाद में शिरकत की। मारूफ गुलकारा शान आरा बेगम ने हाजरीन को अपनी खूबसूरत गायकी से खूब महसूस किया। इसी पर देखिए सलीम साबरी की ये रिपोर्ट। ईस्ट लंदन के इलाके वाल्थमस्टो में वाल्थमस्टो कंजर्वेटिव पार्टी ने एक ईद मिलन पार्टी और फंड रेजिंग तकरीब का एहतमाम किया जिसमें कंजर्वेटिव पार्टी के अहदेदारों के साथ साथ मकामी लोगों ने भी भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमाओं ने पार्टी की मुख्तलिफ पॉलिसियों के हवाले से आगाह किया, फलाही मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। खूबसूरत तकरीब में ईद मिलन पार्टी का रंग अरूज पर रहे मारूफ गुलकारा शान आरा बेगम ने अपने फन का जादू जगा कर खूब दाद वसूल की। शान आरा बेगम के पंजाबी गीतों ने शुरा के दिल मोह लिए। शान आरा बेगम में शुरा की फरमाइश पर भी कई गीत पेश किए जिन्हें शुरा ने बेहद पसंद किया। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, न जाने क्या हो तुमने छू लिया, खिला गुलाब की तरह मेरा कदम निखर गई, सवर पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ साथ मकामी बरतानवी शहरी भी मौसीकी से लुत्फ अंदोज होते रहे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वाल्थमस्टो कंजर्वेटिव के चेयरमैन हमायूं अकरम ने कहा कि प्रोग्राम का मकसद कम्युनिटी को आपस में जोड़ना है। आज का इवेंट जो है वो लोकल कम्युनिटी के साथ कंजर्वेटिव की इंगेजमेंट उसका टारगेट है। फंड रेजिंग इसका हमारा दूसरा मकसद है ताकि हम इस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, मुस्लिम कम्युनिटी पाकिस्तान कम्युनिटी को इंगेज कर सकें। वाल्थमस्टो कंजर्वेटिव के कैंपेन मैनेजर अफजल अकरम ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग चाहते हैं कि उनको सेहत की बुनियादी सहूलतें मिलें, कारोबार में भी सहूलतें मिलें और टैक्सों की भरमार न हो। लोगों के बुनियादी हकूक का ख्याल रखना कंजर्वेटिव पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। उनका कहना था कि इस तरह की तकरीबात से लोगों को आपस में मिल बैठने का मौका मिलता है। फंड रेजिंग इवेंट है लेकिन हम ईद मिलन पार्टी भी बना रहे हैं कम्युनिटी के साथ, तो हमारी जो पार्टी है वो ऐसे कोशिश कर रही है कि कम्युनिटी के साथ हम चलें, कम्युनिटी के साथ हम काम करें और कम्युनिटी आके हमारे साथ भी काम करे। हमारी जो वैल्यूज़ है एज ए कंजर्वेटिव वो पाकिस्तानी और मुस्लिम लोगों की वैल्यूज़ के सेम है। हम एजुकेशन की तरह ज़्यादा दौड़ देते हैं, बिजनेस की तरह ज़्यादा दौड़ देते हैं। खूबसूरत तकरीब के हवाले से कंजर्वेटिव पार्टी के कारकुनों, अहदेदारों और दीगर शुरा ने कुछ यूँ इजहार ख्याल किया। I am delighted to have had the opportunity to be able to support and sponsor Walthamstow Conservatives. Or this event is in celebration of Eid and of course fundraising Eid al-Adha, and this is an absolutely fantastic time for the Pakistani community to become far more involved within the Conservative Party, and without the Pakistani community becoming involved more and more within Conservative Party politics. लोकल कम्युनिटी इंगेज हो, ईद में सारे मिलें, हल्ला गुल्ला करें, एंजॉय करें और एक फंड रेजिंग इवेंट भी है कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से। आज हम यहाँ आए हैं ईद डिनर के लिए ताकि वॉल्थमस्टो में ताकि हम पाकिस्तानियों से, मुसलमानों से मिलें, उनसे बातचीत करें, उनसे पता चले कि क्या इश्यूज़ हैं उनके पास, उनको पार्टी से इंट्रोड्यूस करवाएं। कंजर्वेटिव ने जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है ईद मिलन पार्टी का, और ये फंड रेजिंग भी है और कम्युनिटी को एक दूसरे के करीब लाने के लिए भी है ये सारा प्रोग्राम। We're here at a fundraising event by the Conservative Party for community cohesion,
bringing the community closer together and celebrate Eid Milan. तकरीब में मुख्तलिफ फलाही प्रोजेक्ट्स के हवाले से फंड रेजिंग भी की गई। शुरा ने बढ़ चढ़ कर अतियात का ऐलान किया। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, ईस्ट लंदन। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। मलेशिया की मसाजिद में कश्मीर के निहत्ते मजलूम बहन भाइयों के लिए सदाएं बुलंद होना शुरू हो गईं। मलेशिया भर की 6400 से ज़ायद मसाजिद ने कश्मीर की आज़ादी की तहरीक की बुनियाद डाल दी। तहरीक की क़यादत बैनुल-अक़वामी तंजीम मॉपम मलेशिया के चेयरमैन हाजी मोहम्मद आज़मी अब्दुल हमीद ने की। मज़ीद तफसीलात जावेदुर रहमान की इस रिपोर्ट में। मकबूज़े कश्मीर पर गासबाना कब्जे और कश्मीरियों पर तारीख के बदतरीन मुजालिम के खिलाफ मलेशिया के मुसलमान यकजहती की अजीम मिसाल बन गए। इंसानी हकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीम मापम मलेशिया के चेयरमैन हाजी मोहम्मद आज़मी अब्दुल हमीद की ज़ेरे क़यादत मलेशिया भर की 6400 से ज़ायद मसाजिद में कश्मीर के मुसलमानों को भारत के गैर कानूनी तसलसल से निजात दिलाने की तहरीक की बुनियाद डाल दी गई। इस तहरीक में न सिर्फ मलेशिया बल्कि इंडोनेशिया, ब्रुनाई, थाईलैंड, सिंगापुर और दीगर ममालिक के इंसानी हकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीमें भी शामिल हो गई। इस सिलसिले की पहली तकरीब मलेशिया की मारूफ मस्जिद रोज़ातु अल-मतकीन में मुनक्कद की गई, जिसमें मलेशिया के उलमा कराम, दानिश्वरों, सहाफ़ियों और उमायदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मॉपम मलेशिया के चेयरमैन हाजी मोहम्मद आज़मी अब्दुल हमीद ने शुरका को कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों पर अक्टूबर 1947 से लेकर आज तक भारत के शर्मनाक मुजालिम कत्लेआम, खवातीन की असमत दरी और मासूम बच्चों के अगवा जैसे हौलनाक जराइम से आगाह किया। 92 न्यूज़ से खसूसी बात करते हुए हाजी मोहम्मद आज़िम अब्दुल हमीद ने कहा कि आज मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ ने उम्मत मुस्लिमा को एक ऐसे पुरखुलूस इत्तेहाद में परो दिया है जो क़यामत तक उम्मत मुस्लिमा की फलाह और बहबूद के लिए सरगर्म अमल रहेगा। Just started this campaign with all these masajid in Malaysia. Will be about 6,400. The big masajid we have got 17,000. The small ones, and I think with the well planned, well organized, I think the message of the Kashmir struggle will be brought down to people, and we are asking people to give full attention, and also we are trying to also make some small efforts of getting funds to help our Kashmiri brothers who are suffering. उन्होंने कश्मीरी बहन भाइयों से बराह रास्त मुखातिब होते हुए कहा कि वो अपने आप को बिल्कुल अकेला ना समझें। मुसीबत की इस घड़ी में मलेशिया के तमाम मुसलमान और इंसानी हकूक की तंजीमें इनके अजीम जदोजहद में इनके साथ हैं। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, कश्मीर की यकजहती की सूरत में मलेशिया में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की ऐसी बुनियाद रख दी गई है जो क़यामत तक मुसलमानों की उमंगों का तर्जमान रहेगा। कैमरा टीम के साथ जावेदुर रहमान, खुराना, 92 न्यूज़, कोलालमपुर, मलेशिया। अमेरिका के आला सियासी उहदेदारों ने भी कश्मीर के इशू पर आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। न्यूयॉर्क से मुंतखब अमरीकी कांग्रेस वुमेन एवेट क्लार्क ने कश्मीरियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना है कि वो इस हवाले से कांग्रेस में भी आवाज़ उठाएंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, देखिए। I am extremely concerned and raising my voice about what is happening in Kashmir right now. Prime Minister Modi has no right to do what he is doing to the people of Kashmir. And it is up to us to raise our voices for justice, to raise our voices for self-governance and for no discrimination based on religion, because we live it here in the United States. And Prime Minister Modi should know better. We all must raise our voices. When I return to Washington in September, this will be an issue front and center for the United States Congress to deal with, and we're going to deal with it forthright. वफाकी वज़ीर बराए एंटी नारकोटिक्स शहरयार आफरीदी यूरोप के दौरे पर हैं। गुज़श्ता रोज़ वो जर्मनी पहुंचे। तहरीक इंसाफ जर्मनी के रहनुमा जावेद इकबाल ने उनके एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा मीडिया नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। असगर मिर्जा की ये रिपोर्ट।
वफाकी वजीर एंटी नारकोटिक्स शहरयार खान अफरीदी की जर्मनी के शहर हॉनवर में आमद के मौका पर PTI जर्मनी के मरकजी रहनुमा हाजी जावेद इकबाल ने इशाइये का एहतमाम किया, जिसमें जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए दीगर पार्टी कारकुनान के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शिरकत की। इशाइये के मेजबान जावेद इकबाल ने तौकीर बुटर, अंसर भट्ट, काजी हबीबुर रहमान, फारूक भट्ट और सजाद काहलू के साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया और इन्हें जर्मनी आमद पर तहे दिल से खुशामदीद कहा। वफाकी वजीर ने कश्मीर की बदलती हुई सूरत हाल पर रोशनी डाली और इस अमर का इजहार किया कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर करारदाद के मुताबिक कश्मीरियों ने करना है। इस मौका पर जर्मनी में आबाद पाकिस्तानी कम्युनिटी ने अपने मसाइल, जिनमें नेकॉब शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट का बरवक्त अजरा, अकाउंट्स की बायोमेट्रिक और पाकिस्तान से जर्मनी डायरेक्ट फ्लाइट्स जैसे मसाइल सामने पेश किए। वफाकी वजीर ने वादा किया कि ये मसाइल वजीर आज़म इमरान खान के सामने पेश करेंगे। शहरयार अफरीदी साहब को हमने वेलकम किया, उनकी बातें सुनी, बड़ी ईमान अफरोज बातें थी कि यहाँ रह के भी हम दीन पे अमल कर सकते हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए शहरयार अफरीदी का कहना था कि हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहीं भी तनहा नहीं छोड़ेगी। सारे वो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, ओवरसीज पाकिस्तानी फोर फ्रंट पे आए। अब बात यह है कि हर लेवल पर एक चीज़ प्रोफेशनल आप डेवलप्ड वर्ल्ड में बैठें कि ये मिनट्स की बात नहीं होती, इसके लिए कवानीन बनते हैं, इसके लिए स्ट्रेटजी बनती है। वीज़ा पॉलिसी आप देख लें, 173 ममालिक ऑनलाइन, 50 ऑन अराइवल, 66 से 98 ममालिक जो है वो बिज़नेस वीज़ास। दुनिया के इन्वेस्टर्स का पाकिस्तान की तरह रुख हो गया है। हाँ, दुनिया हैरान है, लोग आ रहे हैं, एतमाद बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? और अगर आप कह रहे हैं कि किधर है, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो लोग जो लाइन में खड़े हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं। आज आप पता करें, किसी पाकिस्तान के बैंक से पता कर लें, पाकिस्तान के ओवरऑल रेटिंग्स पता कर लें, डिफरेंट हो गए हैं। डॉलर में अगेंस्ट रुपी डिवैल्यूएशन ज़रूरी हुई है, लेकिन झूठ बोला गया, धोखा दिया गया कौम को। हकीकत पसंद, हमने झूठ नहीं बोलना। इसीलिए आज पाकिस्तान की ग्लोबल परसेप्शन देख लें, और ख़ासकर ये जो UN जनरल असेंबली में जो कश्मीर रेजोल्यूशन 50 साल से लोग भूल गए थे, 11 जो UN रेजोल्यूशन है ऑन कश्मीर। अगली चीज़ आपने कहा कि कमज़ोर, देखें इमरान खान जज और जूरी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नैब अपना काम कर रही है। इन तमाम के ख़िलाफ़ इमरान खान और हुकूमत ने केसेस नहीं बनाए, ये सारी चीज़ें माजी से चल के आ रही हैं। प्रोटेक्शन ऑर्डर क्यों जारी किया? इसलिए जारी किया कि कश्मीर के लोग ये ना समझें कि ये सियासी उसमें इख्तिलाफ है, बटे हुए हैं, एक मैसेज आए। और आपने लेजिस्लेटिव असेंबली में सुना नहीं इमरान प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और अब वक्त आ गया है, हम जंग नहीं चाहते, मोदी को अब सबक सिखाना है। तो व्हाट आई एम एम्फसाइजिंग ऑन इज, इससे पहले क्यों मिसाल ही नहीं आई? पहले तो कलभूषण के हवाले से एक FIR नहीं कटी, जंदाल को, और मोदी मजाक उड़ाता है। मोदी की आप तकरीर सुने कि मैं अफ़गानिस्तान गया, और फिर बाद में जो पूरा सब कुछ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हम सब के लिए, वो पाकिस्तानियों के लिए, ओवरसीज़ के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए, कि जब आप डिलीवर करना चाहें उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप नीयत देखते हैं, और माजी एक प्रोडक्ट ख़रीदते हैं ना, उसकी आप क्रेडेंशियल्स देखते हैं। इमरान खान का माजी 5 साल की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, अब का 1 साल, तमाम चीज़ें दुनिया, आज हिंदुस्तान कंफ्यूज है, उनकी फॉरेन पॉलिसी हर लेवल पर नाकाम हो गई है। पाकिस्तान एमर्ज कर रहा है, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह शाइन और राइज कर रहा है। तकरीब में शरीक ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वफाकी वजीर के दौरे और मुलाकातों को बेहद सराहा और तवक्को जाहिर की कि हुकूमत ओवरसीज को दरपेश मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, जर्मनी। पाकिस्तान की जश्न आज़ादी के हवाले से स्पेन के शहर बार्सिलोना में बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मिली नगमे, टैबलोस, तकारीर और शमे रोशन करके दुनिया को अमन का पैगाम दिया गया। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मिली जोश और जज्बे के साथ शिरकत की। पुरवकार तकरीब की मजीद तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट में। मैं बाबा से ये कह आया, घर बार है मेरा भी पीछे पर आगे भी घर मेरा है।
दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी मुहिब वतन पाकिस्तानी आबाद हैं, अपने कौमी दिन मिली जोशो जज्बे से जिंदा कौमों की तरह मनाते हैं। बार्सिलोना में भी इसी हवाले से एक बड़ी तकरीब मुनक्किद की गई, जिसका एहतमाम कतलान फेडरेशन, इजहार एसोसिएशन, पाक फैमिली एसोसिएशन और पीस फॉर पीस के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में खवातीन और बच्चों के अलावा सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। यौम आज़ादी की ये तकरीब कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के तौर पर मनाई गई, जिसके मेहमान खुसूसी कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान इमरान अली चौधरी थे, जबकि स्पेनिश मेहमान भी खास तौर पर इस तकरीब में शरीक हुए। तकरीब में पाकिस्तान से मोहब्बत के सभी रंग शामिल थे। खूबसूरत मिली नगमे, मिली तराने, बच्चों के टैबलोस, तकारीर और शमे रोशन करके दुनिया को अमन का पैगाम भी दिया गया। एक दिन सी हिजर दे साल वर्गा, असा दिन नहीं सालां दे साल वेखे, असा वेखिया लहू दा रंग चिट्टा, असा फुल कपा दे लाल वेखे, असी मंगिया अपना हक, अज सत बुल्ले नू साडी तमाल वेखे। डॉक्टर इरफान मजीद, अली रशीद भट्ट, खालिद शहबाज चौहान और ताहिर रफी ने कम्युनिटी को आज़ादी की मुबारकबाद पेश की और कश्मीरियों के साथ आज़ादी तक अपनी जद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इजहार भी किया। मैं यौम आज़ादी के हवाले से बार्सिलोना में मुनक्कद इस प्रोग्राम की सबसे पहले जितनी भी इंतजामिया, जितने लोगों ने भी तावन किया, जिसमें कतरान फेडरेशन, पीस फॉर पीस, फैमिली एसोसिएशन और इजहार एसोसिएशन थी, तमाम दोस्तों को, तमाम इंतजामिया के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। ये हमारी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है कि दियारे गार में रहते हुए हम अपने वतन से मोहब्बत का सबूत दें। ये जो माशाल्लाह बार्सिलोना कम्युनिटी कसीर तादाद में शिरकत की थी और सारे दोस्तों ने उस 14 अगस्त और इजहार यकजहती कश्मीर में पूरा इंजॉय भी किया और नाल कश्मीरियों नाल इजहार यकजहती का इजहार भी किया। मुंतजिमीन का कहना था कि हम हर साल आज़ादी का जश्न पहले से बढ़कर मनाएंगे। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी की तकरीबात की जान समझे जाते हैं, ने अपने खिताब में मुख्तलिफ शोबों में जहाँ खवातीन की मेहनत और अज़्म को सराहा, वहीं सहाफ़ी बरादरी से आम आदमी के मसाइल और मुश्किलात के अजाले के लिए अपना किरदार अदा करने की अपील भी की। आप प्लीज अखबारों के अंदर बड़े बड़े यहाँ के स्टोर होल्डर्स, सनतकार, कम्युनिटी लीडर्स, प्लीज अखबारों में इंसानियत की खबरें लगने दो, वरना पीछे रह जाओगे। कौंसल जनरल ने कम्युनिटी के लिए खिदमत सर अंजाम देने वाली कई शख्सियात को स्टेज पर बुलाकर शाबाश दी और उनके काम को सराहा। आखिर में लोकल सिंगर कदीर अहमद खान ने अपनी खूबसूरत गायकी से माहौल को मजीद हसीन बना दिया। इस तकरीब का शुमार बार्सिलोना में होने वाली यौम आज़ादी की कामयाब तरीन तकरीब में किया जा रहा है। सात समंदर पार मिली नगमों और मिली तरानों की दिलकश धुनों पे लहराता सब्ज़ हिलाली परचम परदेश में देश की याद ताज़ा कर देता है। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। सऊदी अरब में पाकिस्तानी वर्कर्स की जानिब से यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज समेत सिफारती अमले और सऊदी शहरियों ने शिरकत की। उमैर अली की रिपोर्ट देखिए। दारुल हुकूमत रियाज में रियाज मेट्रो प्रोजेक्ट के हजारों वर्कर्स की जानिब से पाकिस्तान के 73वें यौम आज़ादी की मुनासबत से पुरवकार तकरीब मुनक्कद की गई। हजारों वर्कर्स ने पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाकर माहौल को पुरजोश बना दिया। मुकामी सिंगर आकिब अली की परफॉर्मेंस ने भी खूब समा बांधा, जबकि वर्कर्स ने साज रुबाब पर ऐसे सुर बिखेरे कि वतन की यादें ताज़ा हो गईं। इसके अलावा सफारती अमले और सऊदी शहरियों के हमरा वर्कर्स ने झूमर भी डाला। तकरीब से खिताब में पाकिस्तानी सफीर राजा एजाज ने कहा कि सऊदी अरब समेत दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी वर्कर्स मुल्क का सरमाया हैं और दियारे गैर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। मसला कश्मीर के हवाले से राजा अली एजाज ने कहा कि कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। भारत लाख साजिशें कर ले, कश्मीर पाकिस्तान बन के रहेगा। हिंदुस्तान की जो 370वीं आईनी शिक है उसको इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान ने ये झांसा देने की कोशिश की
कि वो कश्मीर को अपने अंदर अपनी टेरिटरी बना के ज़म करेगा, लेकिन आप सबके सामने बैनुल-अक़वामी सतह पे यूनाइटेड नेशंस ने जब एक मीटिंग कॉल की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि कश्मीर बैनुल-अक़वामी मसला है और हिंदुस्तान को कोई हक नहीं कि वो उसको अंदरूनी मसला समझ के उस पर फैसले करता रहे। तकरीब से एहसान सती, मलक तनवीर, अजहर महमूद और जमाल अब्बासी के अलावा रियाज मेट्रो प्रोजेक्ट के आला अफसरान ने भी खिताब किया। आखिर में यौम आज़ादी का केक भी काटा गया। मलेशिया में तैनात की जाने वाली पाकिस्तान की नई हाई कमिश्नर आमना बलोच ने कोलालंपुर में अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने पाक मलेशिया ताल्लुकात में मजीद बेहतरी लाने के अज़्म का इजहार किया। जावेदुर रहमान की ये रिपोर्ट। मलेशिया में पाकिस्तान की नई हाई कमिश्नर आमना बलोच ने कोलालंपुर में अपनी जिम्मेदारियां संभाल लीं। इस मौका पर उन्होंने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू भी की। कश्मीर के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये मसला एक बैनुल अक़वामी मसला है। जिस तरह पाकिस्तान ने इसे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में उजागर किया, इससे पूरी दुनिया में मसला कश्मीर की अहमियत बहुत बढ़ गई है। कश्मीर का जो मसला है वो उसकी नौयत जो है वो एक लोकल मसले की नहीं है, वो इंटरनेशनल मसला है। आपने देखा कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान ने इसको रेस किया। इसका प्रोफाइल अब बहुत बढ़ गया है, लेकिन मैं आपसे इस चीज़ पे एग्री करती हूँ कि इसके बारे में, क्योंकि पिछले 50 साल में ये इशू उस तरीके से नहीं हम उसको लेके चल सके, लेकिन यहाँ पे एक लोकल लेवल पे अवेयरनेस कैंपेन जो है वो बहुत ज़रूरी है। आमना बलोच का कहना था मसला कश्मीर को मलेशिया में उजागर करने के लिए हिकमत अमली तैयार की जा रही है, जिसमें हुकूमती तालीमी सतह के अलावा थिंक टैंक्स, इंसानी हुकूक की तंजीमों और NGOs को भी साथ मिलाया जाएगा। स्टेटमेंट्स आ रही हैं मलेशियन गवर्नमेंट की तरफ से, वो काफ़ी पॉजिटिव हैं और वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सपोर्ट करती हैं। तो हम उसी मोमेंटम को लेके चलेंगे। यहाँ पे हम इसको 3 लेवल्स पे हम इसके साथ जो है वो डील करेंगे। एक तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल होगा, जहाँ पे हम गवर्नमेंट के साथ इसको कंटिन्यूसली रेस करेंगे। दूसरा लेवल जो होगा वो होगा हमारा एकेडेमिया, थिंक टैंक्स और उनके साथ, और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पर्टिकुलरली ह्यूमन राइट्स के हवाले से इस इशू पे काम कर रही हैं, उनके लेवल पे होगा। और तीसरा हमारा मैसेस के लेवल पे होगा, कि जनरल पब्लिक के लेवल पे होगा। इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी चॉक आउट की जाएगी। आमना बलोच ने तजारत के हवाले से कहा कि पाकिस्तान मलेशिया के साथ मौजूद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA में ऐसे निकात शामिल करना चाहता है, इस तरह दोनों ममालिक के माबैन तजारत के मौजूदा हुजम बराबरी की सतह तक लाया जा सकेगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को हम रिव्यू करें। उसकी लास्ट रिव्यू मीटिंग जो है वो 2 साल पहले हुई थी और अब वो स्केड्यूल्ड है। हम दोबारा उसको रिव्यू करवाना चाहते हैं मलेशियंस के साथ, और हम इस तरह के टर्म्स जो है वो उनके साथ नेगोशिएट करना चाहते हैं जो कि पाकिस्तान को फेवर करते हो, पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को फेवर करते हो। इसमें हमारा जो वज़ीर आज़म साहब का विज़न है, वो चाहते हैं कि हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को जो है प्रमोट करें, हमारे वैल्यू एडेड टेक्सटाइल्स को हम प्रमोट करें, लाइट इंजीनियरिंग को जो है वो प्रमोट करें। तो ये दीज विल बी द फोकस ऑफ आवर अटेंशन। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का मजीद कहना था कि इनकी कोशिश होगी कि मलेशिया के साथ मिलकर जॉइंट इन्वेस्टमेंट कंपनी तश्कील दी जाए, जिसके जरिए दोनों मुमालिक सयाहत, तजारत, सकाफत समेत दीगर शुबाजात में मौजूद मौके से भरपूर फायदा उठा सकें। इसमें सीपेक में स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन्स की प्रमोशन भी शामिल होगी। टूरिज़्म अगेन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी का। तो टूरिज़्म प्रमोशन हमारी एक प्रायोरिटी होगी। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, सीपेक का आप जानते हैं कि उस सीपेक के हवाले से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं, उनकी प्रमोशन का काम होगा हमारे यहाँ पे। हम फिर देखेंगे पॉसिबिलिटी कि हमने जिस जॉइंट इन्वेस्टमेंट कंपनी अगर हम मलेशिया के साथ स्टैब्लिश कर सकें। ये मुख्तलिफ लेवल्स पे हम काम करेंगे और इसको जो है हमारी कोशिश होगी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लेके चलें जिसमें हम जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करें। मलेशिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की फलाह बहबूद को आमना बलोच ने अपनी अव्वलीन तरजीह करार दिया। उन्होंने कहा कि इनसे पहले भी पाकिस्तान हाई कमीशन में कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए इंतहाई आसान इक़दामात किए गए हैं। इनकी कोशिश होगी इस सिलसिले में एक कदम मजीद आगे बढ़ा जाए।
बैंकॉक में एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में नए आने वाले तलबा के एजाज में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसका अहवाल बता रहे इमरान यूसुफ अपनी इस रिपोर्ट में। थाई दारुल हुकूमत बैंकॉक में एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की जानिब से नए आने वाले तलबा के एजाज में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सफारत खाना के नाज़िम अल अमूर फराज जैदी, ओवरसीज पाकिस्तानी थाई एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर राना तनवीर अहमद और सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अजहर विर्क ने शिरकत की। स्टेज सेक्रेटरी के फ्राइज इंजीनियर सावल करीम ने अदा किए। फराज जैदी और मोहम्मद अजहर विर्क ने अपने खिताब में तलबा को हदायत की कि वो पाकिस्तान को अक़वाम आलम में बेहतर से बेहतरीन मुकाम दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा करें। तकरीब में तलबा ने पाकिस्तानी मिली नगमे भी गाए। तकरीब के इख्तिताम पर तलबा की तरफ से मौजूद मेहमानों को तोहफे पेश किए गए। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। ब्रेडफोर्ड में ख्वातीन के क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तानी ख्वातीन क्रिकेट टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर फतह अपने नाम कर ली। सेमीफाइनल में पाकिस्तानी कुड़ियों ने भारतीय नारियों को खूब धूल चटाई। फजा पाकिस्तानी शायकीन के पाकिस्तान जिंदाबाद के पुरजोश नारों से गूंजती रही। तफसीलात वकार बाबर मुगल की इस रिपोर्ट में। ब्रेडफोर्ड क्रिकेट स्टेडियम पार्क एवेन्यू में मुख्तलिफ खैराती इदारों की फंडिंग के लिए खवातीन पर मुश्तमिल टीमों के माबैन क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें इंग्लैंड, पाकिस्तान, भारत और ब्रेडफोर्ड के नामों से टीमों ने शिरकत की। मैच का इफ्तिताह सदारती अवार्ड याफ्ता महवा शयात ने बॉलिंग, जबकि शेडो मिनिस्टर नाज शाह ने शॉट लगाकर किया। मेंबर हाउस ऑफ लॉर्ड पटेल ने भी खुसूसी शिरकत की। उनका कहना था कि बरतानवी हुकूमत अगले 2 सालों में खवातीन में क्रिकेट के फरोग के लिए 20 मिलियन पाउंड मुख्तस कर रही है, ताकि खवातीन क्रिकेट की तरफ रागिब हों। टूर्नामेंट को देखने शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिनमें मर्दों खवातीन के अलावा बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शायकीन क्रिकेट अपनी अपनी टीमों की हौसला अफजाई करते दिखाई देते रहे। सेमीफाइनल मैच पाकिस्तान और इंडिया के माबैन खेला गया, जिसमें पाकिस्तानी कुड़ियों ने बेहतरीन खेल पेश करते हुए इंडियन नारियों को धूल चटा दी। फाइनल मैच में पाकिस्तानी टीम ने मुकर्ररा 10 ओवर्स में 60 स्कोर किए, जिसके ताक़ुब में इंग्लैंड की टीम 10 ओवर्स में 50 स्कोर ही बना सकी और यूं पाकिस्तानी टीम ने टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। मैच की जीत पर पाकिस्तानी सपोर्टर्स ने पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए और फजा नारों से गूंज उठी। आखिर में जीतने वाली और रनर्स अप टीम को ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर शिरली कंगन ने इनामात तकसीम किए। मुख्तलिफ कम्युनिटी यहाँ पे खेलने चाहिए, क्योंकि मतलब है कि ये एक मस्बत एक्टिविटी है और ख़ासकर यंगस्टर के लिए अगर हमने अपने यंगस्टर को इस मस्बत एक्टिविटीज़ में इंडोल्ज किया तो। My name is Sabia. We just won. We're in the finals. The game was really tight because our fielding was really a bit down, but I'm really excited for the finals. This tournament is absolutely amazing. We're all buzzing, especially now we've just won the first round. It's a great opportunity for many women in Bradford, opportunities that have not been open to many women for a long time, particularly South Asian women. At the International Women's Charity game today. And it's so fantastic to see so many people participating in this fantastic event. सब इकट्ठे हुए हैं और ये सब एंटरटेनमेंट के लिए है। ऐसे एंटरटेनमेंट यहाँ रोज़ हुए और यहाँ सब खुशी के साथ इकट्ठे होते हैं। I feel that these kind of tournaments are very important because it brings a lot of different communities and cultures together, and that's what we need in Bradford. And it just shows how Bradford works together as a team, or it's not as a whole team, not just individual teams. Huge congratulations to Team Pakistan that's actually won the cup, so well done to them. But congratulations to all the other teams, Team Bradford, Team England and Team India. They've played absolutely amazing and we just really want to encourage more women to get into sport. Women's को ऐसे चाहिए कि ये खेलने के लिए आया करें, एक तो इनको ये मौका मिल जाता है, एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है और बहुत अच्छा है कि ये वुमेंस को भी मौका मिले और ये भी क्रिकेट खेलने आए, घर से इनको भी टाइम मिल जाए। फैमिली फ्रेंडली लेडीज़ के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है। इसकी यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट का जो बोर्ड है वो ये पुश कर रहे हैं कि यहाँ के लोकल खास करके ख़वातीन और बच्चों को इंकरेज करें कि फ़िज़िकल एक्टिविटी में क्रिकेट में पार्टिसिपेशन लें। इस तरह के टूर्नामेंट के इनेकाद से हासिल होने वाली रकम जहां फलाई कामों में इस्तेमाल होती है, वहीं पर ख़वातीन को आगे आने के मौके भी मिलते हैं। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़,
ब्रैडफोर्ड। तुर्की के शहर इस्तांबुल में पैनोरामा म्यूजियम मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। अजायब घर का मकसद 6 सदियां पहले रोमन एम्पायर के खिलाफ सल्तनत उस्मानिया की तारीखी फतह की याद ताज़ा करना है। इसी हवाले से देखते हैं तुर्की से आतिफ भट्ट की ये रिपोर्ट। पैनोरामा हिस्ट्री म्यूजियम इस्तांबुल मेट्रोपॉलिटन ने 2009 में कायम किया। इस शाहकार अजायब घर का मकसद 6 सदियां पहले रोमन एम्पायर के खिलाफ सल्तनत उस्मानिया की तारीखी फतह की याद ताज़ा करना है। इस तारीखी म्यूजियम का इफ्तिताह तुर्की के मौजूदा सदर रजब तैयब एर्दोगान ने किया। म्यूजियम तोपकापी महल की इस दीवार के करीब बनाया गया है जिसे सल्तनत उस्मानिया की फौज ने 1453 में रोमन बादशाह पर हमले के लिए गिराया और फिर 53 रोजा जंग के बाद इस्तांबुल पर कब्जा कर लिया था। म्यूजियम में इस जंग की खूबसूरत तस्वीर कशी की गई है। पैनोरामा म्यूजियम की सैर के दौरान सियाहों को यूं लगता है जैसे वो 6 सदियां पुराने मैदान जंग में खड़े हों। इस्तांबुल के इस तारीखी अजायब घर की यही खूबी रोजाना हजारों सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। यहाँ आने वाले सियाह इसकी तारीफ किए बगैर नहीं रहते। यहाँ आकर बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ हैं। आज 1 घंटा तो हम इधर म्यूजियम में सैर करने आए हैं, बहुत ही अच्छा लगा। इधर आके मुझे बहुत पुरानी चीज़ें नज़र आई हैं। इधर आके मैंने देखा है कि तुर्की की तारीख की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देखने में बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। लाखों सियाह इधर आते हैं। Değerli Pakistan bizim halk kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz. Biz o Pakistan çok seviyoruz. Biz her zaman ülkemize davetlidir. Buyurun gelsin, simit satıyoruz. Buyurun gelsin, simit alsın. Lezzetli simit, buyurun kardeşlerimize. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Pakistan ve Türkiye kardeştir, kardeş bir ülkedir. Bu ülkeye davet ediyoruz sizi. Sultanahmet Camisi, Ayasofya, 1453 Panorama Müzesi vardır. ve bunun yanında Türkiye'de birçok güzel yerler vardır. म्यूजियम में बंदूकों की घन गरज, गोलियों की तड़तड़ाहट, फौजियों की ललकार और मिलिट्री बैंड की झंकार सियाहों को दोबारा यहाँ आने पर मजबूर कर देती है। जी, इस म्यूजियम में सल्तनत उस्मानिया और तुर्की की तारीख के नवादरत पड़े हुए हैं जिन्हें देखने के लिए सालाना लाखों टूरिस्ट तुर्की का रुख करते हैं। और जो भी इस्तांबुल में आए यहाँ की सियाहत किए बगैर नहीं रहता, क्योंकि यहाँ तुर्की की तारीख रकम की हुई है। आतिफ भट्ट, नुमाइंदा 92 न्यूज़ तुर्की। प्राइम टाइम बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92newshd.tv को देखते रहिए 92 न्यूज़।